Good morning to all. Welcome to TSSM Bhimrabhai Sawant College of Engineering and Research, Nare, Pune. I, Jayesh Kolle, Student President of IGS BSCR Chapter, welcomes Engineer Vikas Patil Sir, Chairman of IGS Pune Chapter, Suman Jain Ma'am, Secretary of IGS Pune Chapter, Iyer Madam, Joint Secretary of IGS Pune Chapter, our Principal Dr. Sir, our HOD Professor N.R. Patil Sir, Faculty Coordinator Professor K.S. Bhosle Ma'am, Organizing Committee, and all my diploma and degree participants. We are working as IGS student chapter since 2021. Under this chapter, we have conducted various activities for the development of student fraternity. In connection to this, today's webinar has been organized to give the detailed overview of the metro system. Through this webinar, all the participants will gain the knowledge on emerging trends, opportunities, and challenges on metro system. Now, I would like to call our principal, Dr. Hinge sir, to share his thoughts with us. Yes, thank you, Jayesh. At the outset, I would like to welcome our today's January for this. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes. Engineer Shailesh Tiwari of Maha Mumbai Metro Corporation, the chairman of IGSR, and other office bearers, Professor Suman Jain Madam, Professor Annapurni Iyer Madam, Professor N.R. Patil, Professor K.S. Bhosle, and all the dignitaries and dear students. Today we have organized this webinar on emerging trends, opportunities, and challenges in metro system. For the civil engineers, this is really a very vital topic, and our today's speaker will throw enough light on to get the insight into this topic. At the outset, I would like to give brief introduction about this college and our group. TSSM's Bhimrabhai Sawant College of Engineering and Research is one of the 79 institutes being run by JSPM and TSSM group of institutes. We are having 79 different institutes in and around Pune. We offer education from KG to PhD in various sectors like engineering, management, pharmacy, computer applications, and schools. And at present, our civil engineering department is taking a lot of efforts to provide appropriate exposure to all the students to the current scenario in civil engineering. As you all know, Mumbai Metro is proposed to relax the burden of traffic congestion and also to relax the burden on suburban railway network. It is one of the seventh largest network in India with operational length of around 46.4 kilometers. 24% part is underground and around 76% is elevated, and the least interference with existing road networks, and at the same time rapid connectivity to all the important places is the important aspect of this Mumbai Metro. Of course, this is one of the vital topic, and the current civil engineers will get lot of opportunities to work in this sector. So for Mumbai Metro is concerned, the target completion date is 2026. But yes, of course, in if we compare the home ground of the India as a country as a whole, then we will have enormous opportunities in this sector. So with this short introduction, I will hand over the mic to Bhosle Madam. Thank you all for joining this webinar. Thank you. And last but not the least, I would like to thank the IGS Pune chapter and Engineer Vikas Patil sir. He is always providing wholehearted support to all the activities which are being run under the aegis of IGS. And also I congratulate IGS chapter BSCR for active participation in this activity. Thank you. Thank you, sir. Good morning, all.
My name is Aditi Bua from TE Civil, BSc OER. I take this opportunity to introduce our engineer Vikas Patil sir. He is principal consultant at Savi Designers and Consultants and managing directors of Savi Infrastructures and Properties Private Limited. He is alumni of Government College of Engineering, Pune. Initially has worked as a faculty in Government College of Engineering, Pune for a decade. He is inventor and patent holder of the Graviloft technology. It is an innovative method of designing and constructing earth-retaining structures. He has been awarded with Eminent Engineering Award 2018 on behalf of Maharashtra and Goa State, confirmed by Indian Society for Technical Education, New Delhi. He is ex-member of Board of Governance by Government of Maharashtra at College of Engineering, Pune. MHRD, Government of India, granted rupees 40 million research grant for his research proposal, submitted in the course of research work at Indian Institute of Technology, Bombay. He has provided design-build solutions for 25-meter and 30-meter height of retentions. He has worked as consultant and design-build solution Graviloft retaining wall solution provided for various corporates, MNCs, and government organizations. Currently, he is working as chairman of Indian Geotechnical Society, Pune chapter. Now I request Patil sir to guide us. Good morning. Good morning. Thank you, Aditi, for such a warm welcome and warm introduction. Hope I'm audible. Am I? Yes, sir. Thank you. So at the outset, let me thank first of all Campus Director Rushraj Sawant sir, TSMS Bhirobai Sawant College of Engineering and Research, Nare, Pune, for organizing this today's webinar. My special thanks to Principal Sir Dr. Hinge sir, Professor N.R. Patil HOD, then Professor Kirti Bhosle Madam, all faculties of Civil Engineering Department, and Master Jayesh Kolle, who began the session as a president of Bhirobai Sawant College of Engineering IGS student chapter. All office bearers of IGS student chapter at Bhirobai Sawant College of Engineering, Pune. See, when IGS is celebrating 75th years of its inception under the dynamic leadership of our president, Dr. Anil Joseph sir, and our honorary secretary, Dr. A.P. Singh sir, and the entire IGS executive committee, we are really very thrilled and we are really happy that as such events are organized, and especially we are really grateful to you, sir, for organizing such an event, which is really a future for the civil engineers, the gray area, emerging trends in and opportunities in metro system, which is really a new area for all civil engineers. And we, IGS Pune chapter, always feel that, yes, that every civil engineer must be a member of IGS Indian Geotechnical Society chapter. I mean, Indian Geotechnical Society, he should be a member. The reason I'm telling you that IGS is a platform, which is a professional body, is a body which is touching that every civil engineer must know that as foundation is there, and without foundation, there is no other structure. We cannot see the structure what is happening in Indian Geotechnical Society, and especially the area where we are working. There is a great demand, there is a great future for students. But apart from all these things, that today's session, which is a great gift to all civil engineers, as I said, that whether he's related to work in geotechnique or not, that is secondary. But the most important that he must know what is the future for civil engineers, and that is the reason I said that this today's session is a great era, and we are really grateful to Hinge sir and Bhosle madam for really taking the initiative and organizing this event. On behalf of IGS Pune chapter, I am really thankful to all people, and I wish great success for today's event. Tiwari sir, thank you for accepting our invitation and just sharing your views on the burning topic or gray area of civil engineering assets. Thank you very much. Thank you, sir, for your precious guidance. I take this privilege to introduce our today's expert, Engineer Shailesh Tiwari, sir.
Sir completed his civil degree from Walchand Institute of Technology, Solapur. Then Sir worked as field engineer at KEC International Limited, Gurgaon from 2011 to 2012. From 2012 to 2016, he worked as site engineer and he worked as senior site engineer from 2016 to 2018. Then from 2019 to 2020, Sir worked as deputy manager, project engineer for Rail Vikas Nigam Limited, Government of India. And Sir currently working as a senior section engineer at Mahamumbai Metro Corporation Limited and looking after the maintenance work of Metro Depot. Sir has 12 years of experience. Sir got this position not only because of education. Sir have some excellent skills like site management, time management, positive attitude, willingness to learn new skill. Before starting off presentation, I request all participants to post your questions in the chat box related to today's session, which will be answered at the end of the session. Now I request Tiwari sir to start his presentation. Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. First of all, thank you for calling me on this lecture of emerging trend and appointed metro. And let me thanks to all the member on the board. And let me start with my topic. It is about metro. Metro is actually whenever we get out of our house, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो we always take half an hour, 2 hours के आधे घंटे पहले निकलोगे ट्रैफिक के बाहर तो हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा. तो ये रीजन क्यों है? व्हाई दिस इज बिकॉज इतना सैचुरेशन आ चुका है एवरी मेट्रो सिटी लाइक पुणे हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया. तो वहाँ पे हम लोग हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ट्रैफिक में कहीं जाम ना लग जाए. उसका रीजन क्या है? क्योंकि सैचुरेशन इंडस्ट्री आ रही है. सब पूरे पुणे हो गया, मुंबई, बड़े बड़े सिटीज में आईटी कंपनी, आईटी हब हो रहा है. सिटीज में जैसे इंडस्ट्री आ गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. लेकिन हमारा तो लिमिटेड रोड लिमिटेड है. रेलवे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है सबअर्बन में. लोकल पूरा पैक चलता है. मुंबई में, पुणे में भी आप देखते हो कि लोनावाला पुणे के बीच में जो लोकल चलती है वहाँ भी पूरा पैक रहता है. और उस सब देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार इसका और ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसमें आगे. तो इसमें ये देखा गया कि भाई मेट्रो जो यूरोप में जो हुआ, स्टार्ट हुआ है, यूरोप से बेसिकली स्टार्ट हुआ है, तो वो कंसेप्ट क्यों ना इंडिया में लाया जाए. क्यों ना हम कुछ हटके किया जाए, लिमिटेड स्पेस में क्यों ना उसको यूटिलाइज करके कुछ और किया जाए, जिससे कि बर्डन बाकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कम हो. जैसे बस सर्विस हो गया या ट्रेन सर्विस हो गया, तो और ये सब कम हो और पब्लिक डाइवर्ट हो मेट्रो में. ऐसा तो रिगार्डिंग दिस लेट मी स्टार्ट विथ माय टॉपिक. तो बेसिकली मेट्रो इसलिए है कि भाई हम ट्रैफिक को और कम कर सकते, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ा दें, पोल्यूशन कम हो और एक फेज मैनर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम सिटी. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ माय सेमिनार पीपीटी. पीपीटी मेरा आपको दिख रहा है? सभी को शेयर हो रहा है क्या? Not yet, sir. Not yet. Okay, okay. Let me see what is it. Now it is visible. Yes, sir. ओके, तो मैं बेसिकली आपको गाइड भी करूंगा इसके रिगार्डिंग मेट्रो का, और साथ में कैरियर ओरिएंटेड कितना इसमें अपॉर्चुनिटी है मेट्रो का. आपको एज अ सिविल इंजीनियर कितना इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, कैसे वर्किंग होता है मेट्रो का, क्या सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन कैसा यूनिट है, प्रोजेक्ट यूनिट अलग है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट अलग है.
तो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है मेट्रो, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट। मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मैम ने दे दिया था, मैम ने, तो मैं इसलिए इंट्रोडक्शन रखा हूँ कि आप अब ये स्टेज पे स्टूडेंट है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है। जैसे मैं भी वो फेज में यही था कि यार इंफ्रा में जाऊँ कि रियल एस्टेट में जाऊँ, बिल्डिंग में जाऊँ, तो टोटली आई वाज टोटली कंफ्यूज कि करना क्या है मुझे लाइफ। मैं बस ऐसे ही अपना लाइफ ऐसा था कि सेमिस्टर खत्म हुआ, 1-2 महीने की वैकेशन, देन अगेन बैक टू कॉलेज, और वही वही चलता था। बट मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप अभी से ही आपको एक पाथवे खोजना है कि मुझे कहाँ जाना है, कि मुझे आगे पीजी करना है, कि मुझे जॉब, गवर्नमेंट जॉब करना है, कि टीचिंग करना है। कुछ जो भी करना है आपको आज से ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बेसिकली 3rd ईयर लास्ट ईयर के और डिप्लोमा के स्टूडेंट है इसमें। तो मैं बेसिकली उनको कैरियर ओरिएंटेड भी गाइड करूंगा कि आप लोग अभी से ही डिसाइड करोगे करना क्या आपको लाइफ में, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चलेगा नहीं आपका आगे भी। आपको एक चीज में फ्लुएंट होना है और वही फील्ड पकड़ना है। तो मेरा जैसे आप मैं ब्रीफ में बता रहे, तो मैं कहाँ का काम थे, केईसी में था, तो पूल कैंपस कोल्हापुर इंस्टीट्यूट पे हुआ था। वहाँ पे मैं ऐसे कि मुझे आइडिया नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहता है, मैं बस चला गया देखते हैं क्या है, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो देन आई वॉज पोस्टेड टू हिमाचल प्रदेश। वहाँ मैं बहुत ही टफ टफ लाइफ था वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट भी वैसा था, और रहने के लिए भी दिक्कत था वहाँ पे। तो एज अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू बी रेडी टू लिव एनी टफ एरिया में रहना है आपको। लाइफ टफ रहेगा, उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप एट प्रेजेंट यू आर अंडर गाइडेंस ऑफ योर स्टूडेंट, योर टीचर, प्रोफेसर एंड पेरेंट्स के गाइडेंस में। तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है चला, आपको सब गाइड करेंगे। लेकिन एक बार आप जब पास आउट हो गए, तो आपको अल्टीमेटली आपको खुद ही अपने पैरों पे ही करना है, मतलब जो भी करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी से। फिर मैंने गेट क्वालिफाई किया, तो उधर मैं आर्मी में उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो गया। वहाँ मैं 10-11-9 साल काम किया। वहाँ पे मैं डिफरेंट पोजीशन में काम किया। तो वहाँ वर्किंग कल्चर क्या है, मैं आपको साथ में वो भी एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, आप टीचिंग आपने पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या दिक्कतें आती है, वायर एग्जीक्यूशन साइड पे क्या दिक्कत आती है, फिर कैसे डील करना है, पब्लिक डीलिंग कैसे रहता है। तो ये सब मैं आपको आगे आगे स्लाइड में दिखाते जाऊंगा। ओके, तो मेट्रो का कंसेप्ट है, मेट्रो क्यों जरूरत क्यों पड़ा, क्यों, रीजन क्या है उसका। तो रीजन मैं आपको पहले बता चुका कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको इतना ट्रैफिक दिखता है। वो पुणे का तो है, लेकिन मुंबई में बहुत ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट सैचुरेशन हो चुका है। आपको 5 किलोमीटर जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना तगड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो उसके रिलेटेड में मेट्रो का क्या है कि उसका यूजेस क्या है वो देख लेंगे पहले। वेरी हाई वॉल्यूम पीक और पीक डायरेक्शन में चलता है, मतलब आप बहुत ज्यादा पब्लिक को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। एक मेट्रो में ऑलमोस्ट 22 मीटर का बोगी रहता है उसमें, और ऑलमोस्ट 2000 पर्सन का स्टैंडिंग उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इको फ्रेंडली है। तो वहाँ पे आप देखते ही हो कि अभी पुणे में भी आप लोग अगर जाते होगे तो मतलब ऑब्जर्व किए होगे, बाय रोड जाते होगे तो कि कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस में ऑलरेडी 5 स्टेशन ऑपरेशन में, जब पीएमसी स्वारगेट लाइन नंबर 1 का भी स्टार्ट हो चुका है ऑपरेशन। 5 स्टेशन अभी पीएम मोदी जी आए थे उद्घाटन के लिए। तो इको फ्रेंडली है कि OHE है, क्योंकि वहाँ पे कोई डीजल का यूज, डीजल इंजन नहीं रहेगा। वहाँ पे सब इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन रहेगा, जहाँ पे पोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। ओके, इको फ्रेंडली होगा। फिर लो एनर्जी कंजप्शन कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बस से 20% कंपेरिजन में रोड से कम रहता है उसमें एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, देन ग्रेटर ट्रैफिक कैपेसिटी। आप जैसे 7 लेन का बस का ट्रैफिक एक ही रेट में आपका पूरा अकोमोडेट हो सकता है, ऐसा हमारा ये ट्रैफिक का ये कर सकता है मेट्रो का। ठीक है, वेरी लो ग्राउंड ऑक्यूपेशन, ये पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे हम लोग आप देखे होंगे जहाँ भी रोड पे जाते हैं कि मीडियन, रोड का मीडियन है, उस पर ही उन्होंने क्लियर एलिवेटेड बना दिया है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस बहुत कम है, मतलब 2 मीटर विड्थ में आप समझ सकते हो पूरा ऊपर एलिवेटेड कर दिया है और पूरा रोड ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या है कि पूरा स्पेस बच गया, अपना स्पेस बच गया, तो नीचे पूरा आप यूटिलाइज हो रहा, रोड का यूज हो ही रहा है उसको। ठीक है, और फास्टेस्ट रिड्यूस जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम तो आप देख ही रहे, एक बार नॉन स्टॉप चलेगा तो हर एक स्टेशन पर रुकेगा, फिर जाएगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा उसमें, सिग्नल बेसिस पे चलता है वो। ठीक है, तो ये था अपना यूज, मेट्रो का यूज क्या है। अब उसको देखेंगे मेट्रो कैसे आया। पहला फर्स्ट मेट्रो जो आया था वो लंदन में था। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट हुआ
वो हुआ 1863 में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ऑलमोस्ट 150 ईयर तक हो गया है मेट्रो आया यूरोपियन कंट्रीज में। उसको फेमसली अंडरग्राउंड बोलते हैं और एट प्रेजेंट उसका 402 किलोमीटर लेंथ है लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो का। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट है शंघाई मेट्रो चाइना का, जिसका 434 किलोमीटर है। होपफुली इन फ्यूचर इंडिया ये सबको ओवरटेक कर देगा। राइट नाउ DMRC है जिसका ऑलमोस्ट 394 किलोमीटर रनिंग लाइन है यहाँ पे, और अपने मुंबई में भी 338 किलोमीटर प्रपोज है। इन नेक्स्ट 10 ईयर वी विल गेट ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर फुल पेज मेट्रो इन मुंबई इटसेल्फ। ओके, तो वहाँ पे आप पूरा एक वेब बन जाएगा यहाँ पे, जिससे कि सब अर्बन लोकल में लोड कम हो जाएगा थोड़ा एज कम्पेयर टू नाउ। तो अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट मेट्रो आया 1984 में, वो भी कोलकाता में, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, अभी भी उनके अंडर में ही है। तो 1984 से स्टार्ट हुआ। तो अब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उसके सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया नहीं ये तो सही है, तो अपन उन्होंने और अभी सब्सिक्वेंट DMRC स्टार्ट किया। दिल्ली में तो जो आप फेमस है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल इन DMRC, इट्स अ मार्वलस इन द वर्ल्ड। मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, सिस्टमैटिक। मैं तो गया हूँ उसमें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि फॉरेन आ गया हूँ। जो अलाइनमेंट उन्होंने चूज किया है, जो मेथड यूज किया है, अंडरग्राउंड, एलिवेटेड, एट ग्रेड, तीनों टाइप का स्टेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आप डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट को बोलूँगा कि दिल्ली मेट्रो जाइए, वहाँ दिल्ली घूमिए मेट्रो में, बहुत ही अच्छा बना हुआ। राइट नाउ एट प्रेजेंट 15 ऑपरेशन रैपिड ट्रांजिट बोलते हैं मेट्रो को, मतलब मास रैपिड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो अभी अपना कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, पुणे, कोची, कानपुर, ईटी, ऐसा बेंगलोर, इतने में राइट नाउ ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, और 21 सिटीज में प्लान किया गया है, जो अभी FLS सर्वे और सब डिटेल DBR बना के फिर सबमिट हुआ गवर्नमेंट को, तो उसका भी अप्रूवल मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन भी उसमें 10-12 सिटीज के। तो मेट्रो सिस्टम बेसिकली वर्किंग कैसा है, तो मेट्रो सिस्टम का एक अपना अलग ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है। मतलब आप जो भी मेट्रो बनेगा उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसमें जहाँ भी आप देखोगे, जैसे पुणे मेट्रो है, उसको महा मेट्रो बोलते हैं हमारे इधर, उसका पुणे में हेडक्वार्टर है, और वही नागपुर भी, वहाँ नागपुर ऑपरेट होता है वहीं से। तो उसका ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ज्वाइंट वेंचर मीन्स व्हाट, की जो भी फंड रिक्वायरमेंट होगा 50-50% मिलेगा। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, 50% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसमें ऐड करेगा। तो आप समझ सकते हो कि हर एक सिटी में अपना अपना स्टेट का उसमें ज्वाइंट वेंचर है। जैसे अब गुजरात होगा तो गुजरात मेट्रो में ज्वाइंट वेंचर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का रहेगा। तो ऐसे करके सभी जितने इंडिया में हैं वो सभी ज्वाइंटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और जिसका हैंडल होता है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसका अभी हरदीप सिंह पुरी सर भी, जो अभी करंट मिनिस्टर है MOHUA का। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ मेट्रो इज अराउंड 350 करोड़ पर किलोमीटर। अब आप सोच रहे हो कि 1 किलोमीटर का 350 करोड़ रुपए लगता है, मतलब इमेजिन करो कि आप 100 किलोमीटर बनाना है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो का, जिसके लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट में फंड चाहिए, जिसके लिए हम लोग बाहर से भी, जापान जाइका से, यहाँ से ज्वाइंट वेंचर में फंड लोन बेसिस पे देते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन मेट्रो। उसको कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरा एलिवेटेड है, पूरा कॉन्क्रीटिंग पे चलेगा, और सब ग्रेड आप में आगे आपको बताऊंगा कि सब 50 या 40 ऐसे ग्रेड के कॉन्क्रीट हुआ है उसमें। तो आप सभी को शायद पता होगा, मेट्रो मैन श्रीधरन सर है, जो जिन्होंने अपना न्यू रखा है यहाँ पे, बेंचमार्क सेट के DMRC का ही बनाया। बेसिकली वो सिविल इंजीनियर है और वो केरला से है, अभी भी केरला में रहते हैं। उन्होंने कोची मेट्रो में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आप गेज आप सुने होंगे, अभी आप बहुत काफी स्टूडेंट या सब गए होंगे, रेलवे में गए होंगे, तो उसमें गेज मतलब जिसके ऊपर अपना रेक चलता है, रोलिंग स्टॉक चलता है। जैसे आप रोड में देख लिए, रोड में आपको क्या है कि आपके हाथ में स्टीयरिंग रहता है, आप कहीं भी घुमा सकते हैं। लेकिन रेलवे में क्या है, गाइडेड पाथ है जिसमें आपको जाना है, जस्ट आपको जाना है, सिग्नल देखना है बस, और स्पीड आपके हाथ में। तो इसमें 5 टाइप्स ऑफ गेज है, जो आपने पढ़ाई होगा शायद ट्रांसपोर्ट में। तो उसमें मोस्ट कॉमनली गेज है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, वो स्टैंडर्ड गेज।
स्टैंडर्ड गेज 1435 उसका डायमेंशन है, मतलब 4 फीट 8.5 इंच के आसपास रहता है वो। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है अराउंड द यूरोपियन कंट्री में, ऑलमोस्ट 90% वही स्टैंडर्ड गेज यूज होता है। अब इंडिया में आ गए, तो इंडिया में स्टैंडर्ड गेज सिर्फ मेट्रो में यूज हो रहा है, और बाकी जो अपना रेलवे का है उसमें ब्रॉड गेज यूज होता है। ब्रॉड गेज मतलब कितना हो गया, 1676 mm, 5 फीट 6 इंच। अब जितने भी आप पुणे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे आप गेज देखोगे तो 1676 का मिलेगा आपको। उसका बेसिकल फंक्शन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब ब्रिटिश टाइम क्या किया कि सब सामान जो भी ट्रांसपोर्ट होता था तो उसके लिए ज्यादा बड़ा वैगन चाहिए था, तो वैगन के लिए आपको व्हील बेस बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली वो रीजन था कि उन्होंने व्हील बेस 1676 करके, ताकि ज्यादा हम लोग गुड्स कैरी कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो ट्रेंड चलता गया। तो बेसिकली अपना जितने भी ओपन लाइन जो भी है, जैसे मुंबई चेन्नई रूट है, उसका जो भी ये है उसका ब्रॉड गेज में आता है, ठीक है। अब आपने कोई माथेरान गया होगा या कोई हिल स्टेशन ऊटी गया होगा, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि नैरो गेज चलता है। माथेरान में आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गॉन देयर, तो वहाँ पे आप देखोगे नैरो गेज है, मतलब उसका 762 mm का है, 2 फीट का ही है। उसका रीजन क्या है कि वो शार्प कर्व में निगोशिएट कर सकते हैं। जितना गेज कम होगा उतना आपको स्पीड कम मिलेगा, बट आप निगोशिएट कर सकते हो शार्प कर्व में। शार्प कर्व हो गया, ग्रेड हो गया, तो वो एक प्लस पॉइंट है। फॉर दैट दे हैव यूज्ड द नैरो गेज। उसमें भी 2 टाइप के हैं, एक 2 फीट का है और एक 2 फीट 6 इंच का है। तो बेसिकली आप जितने भी हिल स्टेशन पे जाओगे वहाँ पे आपको नैरो गेज ही दिखेगा, और चाहे कालका शिमला हो गया या दार्जिलिंग, आप अब जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिए वहाँ पे, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट नैरो गेज क्या रहता है। मीटर गेज भी है, जिसको मीटर मीन्स, और मीटर से समझ में आ रहा है कि 1 मीटर का गेज रहता है। वो नाउअडेज इंडिया में ऑब्सोल्यूट हो गया, वहाँ वेरी रेयरली यूज होता है। तो उसके जगह पे अभी सब ब्रॉड गेज कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये समझ जाओ कि गेज कितने टाइप के होते हैं, और स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज बेसिकली वी आर यूजिंग इन इंडिया। ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे मेट्रो का। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एक वेस्टर्न लाइन का है मेट्रो का, मुंबई का अंडर कंस्ट्रक्शन का फोटो ये। अभी टर्म वायरडक्ट, जितने भी अपने मेट्रो सब एलिवेटेड है, एलिवेटेड है, तो वायरडक्ट पे आता है। वायरडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि रोड टू लीड, लैटिन में ये होता है, ठीक है। अब वायरडक्ट कंपोज ऑफ क्या क्या कंपोज है वो आपको दिखा देता हूँ। सर्वर स्मॉल स्पैन का रहता है, स्पैन कर करके। तो हमारा लाइन 7 2 ट्रैक का स्पैन है। वेस्टर्न हाईवे जो है मुंडावली से सही से, इसमें आप मेनी ऑफ जो आया होगा अगर मुंबई, तो उसको पता होगा वेस्टर्न हाईवे ईस्टर्न हाईवे जो मेन इसमें डिवाइड है मुंबई। तो हम एक्चुअली आई एम पोस्टेड वेस्टर्न हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे पे हमारा लाइन 7 लाइन 2 का मेंटेनेंस का वर्क चलता है। तो वायरडक्ट क्या आता है, स्पैन आता है जनरली 10 मीटर 75 मीटर, सिंपली सपोर्टेड स्पैन रहता है। बियरिंग के ऊपर उसको ये सपोर्ट किया जाता है। और जहाँ पे क्रॉसिंग आ गया वहाँ पे पीएससी गर्डर यूज होता है, और आरसी कंबाइंड आई गर्डर, ये सब यूज है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ब्रिज का क्या रहता है, बेसिकली ब्रिज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में बियरिंग के ऊपर जो भी है गर्डर है, ट्रैक स्ट्रक्चर है, ये सब आपका सुपर स्ट्रक्चर में आता है। वाइल सब स्ट्रक्चर में बियरिंग के नीचे जो भी है बेड रॉक, पियर, अबटमेंट, फाउंडेशन, ये सब आपका सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप बेसिकली जितने भी सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है वो तो उनको बेसिकली पता होगा कि फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में आपको टीच किया होगा कि क्या क्या रहता है ब्रिज। तो हम आगे चलते हैं ब्रिज। अब इसमें वायरडक्ट ब्रिज में क्या क्या रहता है, सुपर में, सब में, और फाउंडेशन क्या रहता है, मैं आपको एक डिटेल में दे देता हूँ नीचे। तो इसमें गर्डर टाइप रहता है सुपर स्ट्रक्चर में, गर्डर जैसे पीएसयू गर्डर हो गया, आई गर्डर हो गया, कंपोजिट गर्डर हो गया। तो ये सब आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा, बट बेसिकली आप जब साइट विजिट करो कहीं पे तो आपका पिक्चर और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि क्या रहता है, यू गर्डर क्या रहता है, आई गर्डर क्या रहता है, कंपोजिट गर्डर क्या रहता है। उसके बाद बियरिंग्स आ गया। तो बियरिंग्स बेसिकली सपोर्ट करता है का रोड को प्रॉपरली ट्रांसफर करता है पियर को, फिर पियर से फाउंडेशन जाता है। फिर एक्सपांशन जॉइंट आ गया, एक्सपांशन जॉइंट आ गया, उसके बाद पैरापेट आ गया। पैरापेट आपको पता ही होगा, ब्रिज को लगाते हैं, आगे मैं फोटो दिखाऊंगा। फिर केबल का ड्रेनेज स्पाउट आ गया, मैनहोल आ गया। सब स्ट्रक्चर में आपका पियर आएगा, अबटमेंट आएगा, कैप, पियर, पोर्टर, रैंप आएगा, बियरिंग पेडेस्टल, सेस्मिक स्टॉपर आता है, क्रैश बैरियर आता है, ड्रेन पाइप। फाउंडेशन में डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन है, लेकिन बेसिकली मेट्रो में 5 फाउंडेशन यूज होता है। उसकी वजह से कॉस्ट और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेस कम है वहाँ पे।
ओपन फाउंडेशन कर नहीं सकते, टिकर हर मतलब वहाँ पे लैंड का बहुत ही ज्यादा इशू रहेगा आपको। फिर उसके बाद व्हील कैप ओपन फाउंडेशन होगा। तो आगे देखते हैं, ये हमारा वेस्टर्न हाईवे का एक आपको वो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप यू कैन सी दैट ये यू गर्डर है, इसको यू गर्डर बोलते हैं। उसके ऊपर आपका पीवे ट्रैक का जो भी है फिटेड रहेगा, उसके ऊपर ये मेट्रो चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है पियर कैप, देन दिस इज पियर एंड दिस इज पियर प्रोटेक्शन बैरियर बोलते हैं उसको। तो ये बेसिकली एक्सीडेंट कुछ कोई व्हीकल आके उसको डैश ना करे, उसको बचाने के लिए उन्होंने बना गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मैं जो आपको कॉस्ट इफेक्ट का बताया था कि इतना महंगा क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हो M60 M40 के नीचे कोई कॉन्क्रीट है नहीं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी है, अब ये देखिए ये पाइल कैप है, पाइल के बारे में एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पाइल फाउंडेशन तो आप जानते हो कि कहाँ यूज होता है, क्या है। ये सब में आपको बता दूं कि जियोटेक का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप अलाइनमेंट देखोगे। अलाइनमेंट इंजीनियर को बोलोगे भाई मुझे अलाइनमेंट कहाँ से, मैं अलाइनमेंट दूंगा कि हमको मैक्सिमम पैसेंजर कवर कर सके। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट आएगा कि आप कितना भी डिजाइन करो, बट सबसे पहले आपका जियो टेक्निकल आपका सॉइल रिपोर्ट देखना पड़ेगा आपको कि सॉइल कैसा है। आप कितना भी अच्छा डिजाइन करो, अनलेस एंड अनटिल आपका सॉइल कैपेसिटी ये आप रेंज में नहीं आता तो इट्स नो यूज। तो उसके लिए आप जियोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल आता है पिक्चर में। तो इसमें जियोटेक और ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनिशियल स्टेज में। तो मैं ये बोलूँगा कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे हमने अब ट्रांसपोर्ट हो गया, जियोटेक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो सिविल इंजीनियर इतना वास्ट है कि आपको आप सिर्फ डिग्री करके आपसे आप ये नहीं कर सकते। आपको स्पेशल अगर कुछ फ्यूचर में आगे करना है, करियर अच्छा बनाना है, तो आपको एक स्पेशलाइज फील्ड में जाना पड़ेगा, चाहे स्ट्रक्चर हो, जियोटेक हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो यू हैव टू डू एमई और पोस्ट ग्रेजुएशन करके कुछ स्पेशलाइज करोगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि इतना टफ है आज के इसमें कि आपको बेसिकली मैं देख रहा हूँ सिविल इंजीनियर में 10-12-15 हज़ार में लोग जॉब कर रहे हैं बिल्डिंग्स में। तो ये सब आप अवॉइड करना है तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और आपको मैं आगे बताते जाऊंगी मेट्रो में कितना अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप देखिए कि M60 ये CC हो गया, आपका कॉन्कोर्स का पियर हो गया, ये प्लेटफॉर्म, ये आपका फाउंडेशन हो गया, ओके। ये पाइल कैप हो गया, इसके ऊपर पियर प्रोटेक्शन, ये पियर हो गया। उसके ऊपर एक कॉन्कोर्स बोलते हैं, कॉन्कोर्स पियर कैप, इसके ऊपर ये आई गर्डर लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका कॉन्कोर्स यहाँ पे टिकट सेलिंग होता है, ओके। तो यहाँ पे रेलवे सिस्टम नहीं है कि आपने टिकट निकाला फिर टीटी आके चेक करेगा फिर आप जाओगे। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक लगा है, AFC बोलते हैं, ऑटोमेटिक फेयर करेक्शन डोर लगा रहता है, जिसमें आपको टिकट खरीदना, बारकोड आएगा और आप उसको मतलब टैप करोगे और निकल जाओगे। तो ये यहाँ पे कॉन्कोर्स सेवर है, यहाँ पे आपको जितने पैसेंजर है उसका आपको यहाँ पे दिखेगा, ये कॉन्कोर्स सेवर आ गया। यहाँ पे टिकट सेलिंग जो भी इंक्वायरी करना यहाँ पे करेंगे। फिर इसके बाद आप ये आपका प्लेटफॉर्म लेवल आ गया, इसको यू गर्डर बोलते हैं। ये यू गर्डर दिख रहा है, तो यू गर्डर का आपका ये भी M55 का ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट रहता है इसका। तो आप समझ सकते हो कि कितना हैवी स्ट्रक्चर ये, कितना ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज होता है, कितना हैवी कॉन्क्रीट का ग्रेड है M60 M40 M50। तो दिस ऑल आर एडिंग कॉस्ट टू द मेट्रो। इसलिए आपको जो बताया मैं 350 करोड़ जो लग रहा है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आपको इतना ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना है, तो फाउंडेशन देखना है, पाइल फाउंडेशन आप ऑल ऑफ बहुत कॉस्टली हो। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये आप फाउंडेशन के बारे में जो बताया था मैं आपको, फाउंडेशन के लिए तो जियोटेक का एक इम्पोर्टेंट है, उसमें भी आपको सॉइल का रिपोर्ट फिर हमको लैब में भेजना पड़ता है। जो मैं कंस्ट्रक्शन में मैं काम किया हूँ तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग जो भी सॉइल का टेस्ट रिपोर्ट के लिए हम लोग लैब भेजते हैं, अगर वो सॉइल कंडीशन देखते कैसा है उसके हिसाब से फाउंडेशन डिजाइन होता है। वहाँ पे ओपन होगा कि पाइल फाउंडेशन, तो ये सब जियोटेक्निकल ऊपर और जियोटेक्निकल रिप्लाई, then we can move further to we can get a green signal to do the work, okay। फाउंडेशन में आप देखते हैं शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, फाउंडेशन डिपेंडिंग अपॉन साइट के ऊपर भी। बहुत बार मेरे साइट पे ऐसा हुआ कि साइट पे एज पर साइट कंडीशन पे फाउंडेशन भी चेंज करना पड़ा, तो टाइट फाउंडेशन ओपन से पाइल में जाना पड़ा। तो कहीं पे पाइल से ओपन में चलेगी भाई ठीक है, हार्ड स्टार्ट है तो वी कैन चूज ओपन फाउंडेशन आल्सो। तो ये सब कंसेप्ट साइट पे आता है। तो साइट पे जॉब करना इज नॉट अ इजी टास्क, you have to be vigilant, you have to be active,
यू हैव टू शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैं क्या करके मैं कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता हूँ साइट पे। ठीक है, डिजाइन ये तो बैठे ऑफिस में वो आपको बना के दे देगा, हाँ ठीक है यहाँ पे ऐसा एज एस्टिमेट ये ऐसा ऐसा आएगा, आपको बनाना है। बट आपको साइट पे जो बंदा रहेगा उसको ही डिसीजन लेना है कि क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, तो साइट में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट और उसमें आपको सब देखना रहता है, राइट फ्रॉम लेबर अरेंजमेंट टू कॉन्क्रीट, सब चीज आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये आपका पाइल फाउंडेशन में आपने देखा ही होगा, 2 डिफरेंट टाइप के पाइल होते हैं। तो बेसिकली अपन एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल यूज होता है जहाँ पे वीक सॉइल है तो अपन वो नीचे जाते हैं हार्ड स्टार्टर। तो ये साइड के फोटोज है हमारे। तो पाइल फाउंडेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर लोड ज्यादा है, स्पेस कम है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा। उसका अलग अलग कंस्ट्रक्शन मेथड, D1 प्रीकास्ट पाइल है, कास्ट इन सीटू होता है, फिर वो उसका अलग पूरा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है पाइल फाउंडेशन। उसमें हम ट्राइपॉड रख के फिर मतलब 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, उसको प्रीकास्ट करो, नीचे पूरा केज लगाओ, फिर उसके ऊपर एनफोर्समेंट डालो, फिर कॉन्क्रीटिंग करो। तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस और बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि एक भी पाइल फाउंडेशन का टेस्ट फेल हुआ तो अगेन वी हैव टू डू। तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर है ये, मतलब बहुत ही आसान नहीं है, मैं बोल सकता हूँ इसको शॉर्ट वर्ड। तो ये पाइल कैप का, ये साइड का हमारा पाइल कैप क्या रहता है, रेस केस और टिम्बर पाइल है और ह्यूमन। तो कास्ट पाइल डिस्ट्रीब्यूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट ये दिखाया गया। पाइल कैप पे आपने पाइल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका इसको आपने टच कर दिया, यहाँ पे पाइल कैप बना के फिर उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगा दिया। तो ये सब का डिजाइन आता है, डिजाइन आपको डिजाइनर दे देगा कि कैसे क्या रखना है, रिइंफोर्समेंट कितना रहेगा। एज अ साइट आपको देखना है कि वो सब एज पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं, या कुछ चेंजेस उसमें अल्ट्रेशन करना है तो उसका प्रायर अप्रूवल दिया है कि नहीं, क्लाइंट से अप्रूवल दिया कि नहीं। तो ये सब आपको एज अ साइट पे देखना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में आप जब भी कोई स्टूडेंट ऑफ साइट पे आएगा तो ये सब आपको देखना पड़ेगा बारीकी से, देन वन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर इन फ्यूचर। अब आते हैं हम लोग सब स्ट्रक्चर में। तो ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये सब हमारे प्रोजेक्ट का है। बेसिकली मैं तो अभी ओएनडे में ऑपरेशन मेंटेनेंस हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट टीम हमारा देखता है। तो प्रोजेक्ट टीम में ये पियर हो गया, पियर आप देख सकते कितना लेंथ है, उसका हाइट है, हैवी स्ट्रक्चर है बहुत, इसलिए इतना कॉस्ट बढ़ता है। ये पोर्टर मतलब आपको बीच में रोड है तो आपको यहाँ आपका स्पैन बढ़ रहा है, तो इसको आपने पोर्टर इसको बीम बोलते हैं। 2 पियर के बीच में एक आई गर्डर लगा रहा है, स्टील गर्डर जो भी। तो उसके बाद ये पियर कैप हो गया, ये इसका भी मेन काम है कि रोड को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर्ली। उसके बाद ये बियरिंग पेडिस्टर, इसको बियरिंग पेडिस्टर बोलते हैं। ये बियरिंग हो गया, ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये सब स्ट्रक्चर हो गया, ये बियरिंग हो गया। तो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में इलास्टोमेरिक बेयरिंग ज्यादा यूज हुआ है, बिकॉज इलास्टोमेरिक बेयरिंग इज मेंटेनेंस फ्री, ज्यादा मेंटेनेंस उसमें है नहीं और इट्स इजी टू रिप्लेस इट अगेन। आपको ड्यूरिंग मेंटेनेंस टाइम पे इसको मेंटेन करना आसान है एज कम्पेयर टू अदर बियरिंग। अब ये आप फोटो देख रहे हैं, ये भी हमारे प्रोजेक्ट का है। आप यू कैन इमेजिन दिस हाइट, ऑलमोस्ट 4-5 मीटर का हाइट है ये। तो ये पूरा अब मैं जो आपको बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। 2 मीटर के अंदर आपने पाइल फाउंडेशन किया, पियर स्टैंड, तो ये दिखने में एकदम आसान दिख रहा है, ठीक है तो लगा दिया हो गया, लेकिन इसमें जो कॉस्ट है और जो मेहनत लगता है जब साइट पे आप एग्जीक्यूशन करते हो, तो इट्स नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे डील करना पड़ता है, राइट ऑन ट्रैफिक डाइवर्जन एंड फिर उसमें आपको पब्लिक डील करना पड़ता है, सबसे डील करना पड़ता है। फिर सोसाइटी में दे आर कंप्लेन करते कि आवाज आ रहा है। तो बहुत कुछ साइट के रिलेटेड में बहुत प्रॉब्लम आती है जो आपको एज ए साइट में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि साइट पे आप काम करना इतना आसान नहीं है। जो आप समझ लें कि अभी आप कॉलेज में है तो सब ठीक है चल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप जब साइट पे जाओगे तो बहुत कुछ आपको मेंटली फिजिकली सब चीज आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है काम करना साइट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। अबटमेंट क्या रहता है, अबटमेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रिज के एंड में रहता है। बेसिकली उसका काम क्या है कि लोड ट्रांसफर करता है ऊपर टू फाउंडेशन एलिमेंट को, सपोर्ट करता है अप्रोच रोड को, यहाँ पे सपोर्ट करेगा वो, ये सब इसको अबटमेंट आप बोल सकते हैं। तो बैलेंस बिटवीन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट आज ब्रिज पे भी रहता है। तो मेन इसका काम है कि सपोर्ट करना, अप्रोच स्लैब को भी सपोर्ट करना। अब ये पियर कैप
और ऑब्लिक हेड स्टॉक भी बोलते हैं इसको। ये इसका भी बेसिकली काम क्या है, ट्रांसफर लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर पियर कैप सफिशिएंट ब्रिज गटर डिस्पर्स करता है नीचे बियरिंग में, बियरिंग के बाद फिर वो पियर में जाता है। तो यहाँ से लोड आपका आएगा, यहाँ पे ट्रेन चलेगी, डायनामिक फोर्स जनरेट होगा, स्टैटिक आएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन उसका सब फोर्स जनरेट होगा। ये यहाँ पे बियरिंग पे आएगा, पेडेस्टर है, फिर यहाँ से पियर कैप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर सब डिस्ट्रीब्यूट करके लोड यहाँ से ट्रांसफर करके नीचे फाउंडेशन में आएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट यही है इसका पियर कैप का, कि लोड को ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फिर एक पाथवे में लेके नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना। अब पेडेस्टर का जो मैं आपको बताया, पेडेस्टर ये दिस इज पेडेस्टर, इसका और डिटेल में आगे सही है। पेडेस्टर क्या है, एक रेज स्लैब है जिसके ऊपर हम लोग बियरिंग रखते हैं। ठीक है, जनरली इट इज मेड ऑफ आरसीसी का रहता है, हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M35 M40 का भी रहता है, डिपेंड अपॉन साइट कंडीशन। तो ये आपका बियरिंग हो गया, ये आपका पेडेस्टर इसको कहा जाता है। ये बियरिंग अलग अलग टाइप के आते हैं, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बियरिंग का मेन पर्पस क्या है कि कंट्रोल वे में उसको मूवमेंट को ट्रांसफर करता है, जितने स्ट्रेसेस आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसफर, तो वो सबको प्रॉपर ट्रांसफर करना नीचे सब स्ट्रक्चर में। मेन बियरिंग का यही काम है, जिससे अपना शॉक एब्जॉर्बर होता है सेम लाइक। अभी सेस्मिक अरेस्टर क्या रहता है, सेस्मिक अरेस्टर मतलब इन केस आपका अर्थक्वेक आया तो उसको टैकल करने के लिए एक डिजाइन और सेस्मिक का तो इसमें मेनली फैक्टर डिजाइन सेस्मिक करने के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर डिजाइन कंसीडर किया जाता है, क्या क्या कंसीडर, कितने कौन से जोन में आ रहा है, जोन 4 में आ रहा है, जोन 3 में आ रहा है। एक अर्थक्वेक का एक चार्ट है आपका, आप शायद देखे होंगे, मैप है अपना, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 में अर्थक्वेक का डिवाइड है, उसके ऊपर से डिजाइनर अपना डिजाइन करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिजाइन फिर हमको सबमिट होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं, उसमें कितना का रेनफोर्समेंट आएगा वो सब डिजाइन पार्ट है उसमें। फिर क्रैश बैरियर जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका क्रैश बैरियर है। आप सपोज यहाँ पे कोई रोड में आ रहा है और अननोइंग उसने इसको डैश किया, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे क्रैश बैरियर बनाया हुआ है। इसका जनरली गैप रहता है 25 mm बिटवीन पियर एंड क्रैश बैरियर के बीच, ये पियर और क्रैश बैरियर के बीच में 25 में गैप रखा जाता है। इसका मेन मोटो ये है कि डैमेज, रोड एक्सीडेंट से डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अराउंड द पियर इसको बनाया गया है, और मेन इसका बेसिक काम ये है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। अब ड्रेनेज का आप देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम वाई अब ऊपर एलिवेटेड है, तो वहाँ पे आपको ड्रेनेज का पानी तो भरना है। मुंबई में तो आप जानते हैं हैवी रेनफॉल होता है, तो फ्लडिंग अवॉइड करने के लिए वायर डक्ट है, वी हैव टू प्रोवाइड ड्रेनेज। ये आप यू गर्डर है, इसके यहाँ पे स्पाउट ड्रेन स्पाउट प्रोवाइड किया है, ताकि वी कैन प्रॉपरली गाइड द वाटर टू गो डाउन, और ये फिर रोड पे आ जाता है। सो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है, इसको ब्लॉकेज फ्री, यही सब हमको मेंटेन करना था डे टू डे रूटीन में, कि कहीं पे चोकअप नहीं हो गया, ये सब देखना। ठीक है, फिर आगे बियरिंग। अब ये आपका सुपर स्ट्रक्चर में ये अब जो मैं आपको बताया, यू गर्डर ये कास्ट इन सिटू होता है या प्रीकास्ट होके आता है, मैक्सिमम तो प्रीकास्ट ही होता है। यहाँ पे जे कुमार को मिला है प्रोजेक्ट हमारा, जे कुमार कंपनी सिविल इंजीनियरिंग, तो बेसिकली मुंबई में हेडक्वार्टर उसका, तो उनको हमारा प्रोजेक्ट का मिला 50% का काम मिला है जे कुमार को गर्डर का। तो ये प्रीकास्ट यार्ड में करके उसको ट्रांसफर करके फिर यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ठीक है, दिस इज बियरिंग, आपको बता दें ये इलास्टोमेर बियरिंग का है। ये एक्सपांशन जॉइंट जो आप देख रहे हैं दो गर्डर के बीच में, इसको एक्सपांशन जॉइंट बोलते हैं। और ये आपका पैरापेट जो मैं आपको बताया, ये ब्रिज होगा, ये जिसके ऊपर पैरापेट आ जाता है, यू गर्डर के ऊपर ये पैरापेट दिस वन। तो ये आप पैरापेट देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा प्रोजेक्ट में यूज हुआ है लाइन 7 लाइन 2 में, उसमें पीए मैक्सिमम सब प्री स्टेज है, यू गर्डर सी टाइप गर्डर है, जिसका मैक्सिमम स्पैन लेंथ है 28 मीटर और आइडियल 25 मीटर होना चाहिए, बट ड्यू टू साइट कंस्ट्रेंट कहीं कम ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से लेंथ कम ज्यादा हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यू हैव 25 मीटर का रहता है स्पैन। उसके बाद आता है पीएससी आई गर्डर। आई गर्डर में आपको मैक्सिमम जहाँ पे अनअवॉइडेबल कैनल आ गया, जहाँ पे लेंथ आपका स्पैन का बढ़ गया, तो वहाँ पे पीएससी आई गर्डर, वो भी कास्ट इन सिटू आता है, डेक्सर के साथ आता है। तो मैक्सिमम स्पैन लेंथ उसका 40 मीटर का रहता है, मिनिमम 31 मीटर का रहता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन साइट कंडीशन ये भी चेंज होता रहता है,
चेंज हो जाएगा, बट आइडियली 40 मीटर अराउंड पे हमारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ है। कंपोजिट स्ट्रक्चर स्टील गर्डर और कंक्रीट डेक स्लैब का रहता है, ये जहाँ पे मैक्सिमम जैसे कहीं पे ओपन लाइन का लाइन आ रहा है तो उसको क्रॉस करना है, एलिवेटेड जा रहा है तो नीचे रेलवे लाइन आ रहा है तो उसको क्रॉस करने के लिए फिर आपको स्पैन बढ़ाना पड़ता है। ये आपको स्टील गर्डर यूज किया गया है, जिसका हमारे प्रोजेक्ट में जो है स्पैन 52 मीटर का है, जो दहीसर के पास है यहाँ पे। फिर स्टील प्लेट गर्डर हो गया, फिर पीएससी बॉक्स गर्डर टाइप आता है, बॉक्स वो फोटो में आपको दिखाऊंगा मैं, इसका स्पैन 55 मीटर रहता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के गर्डर की यूज हुए हमारे प्रोजेक्ट में, यू टाइप, आई टाइप, ये सब आप जब कभी पुणे में भी आप देखोगे, कभी रोड पे जाओगे तो वाइल ऑब्जर्व करना, तो आपको समझ में आएगी वहाँ पे कैसे टाइप के बॉक्स, मैक्सिमम बॉक्स टाइप गर्डर वहाँ पे यूज हुआ है पीएससी में, पीएससी बॉक्स गर्डर। तो आप अभी आप इसके बाद जब भी आप जाओगे, यू कैन बारीकी से देखना कि आप क्या क्या है मेट्रो में, क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी है, देन यू कम टू रियलाइज कि हाँ इसमें कितना स्कोप है आगे भी इसमें काम पे। अभी यू गर्डर मोनोलिथिक कास्टेड होता है, जो आपको बताया मैं, ये कास्टिंग यार्ड यहाँ पे कास्ट होता है, प्रॉपर उसका क्वालिटी चेक होता है कि क्यूएससी एक अलग डिपार्टमेंट है, तो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि एज पर स्टैंडर्ड बना है कि ग्रेड, कॉन्क्रीट ग्रेड सही है कि नहीं, उसका क्यूब टेस्ट होता है। उसके बाद अगर सब चीज में वो पास हो गया, देन ओनली दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू साइट, फिर उसको साइट पे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 लाइन है, तो एक ये 1 लाइन के लिए होगा और एक ये 1 लाइन के लिए होगा। तो ये आपका है यू गर्डर, दिखने में यू बोलते इसको यू गर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइम सेव करना, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बॉक्स गर्डर, और इसको बनाना इज समवॉट इजी देन एज कम्पेयर टू बॉक्स गर्डर। ये आप प्रीकास्ट आप देखो, सिंपल डिजाइन, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम मुंबई में जितने भी प्रोजेक्ट अंडर लाइन 6, लाइन 5, लाइन 3 तो अंडरग्राउंड है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे ऑनगोइंग है वो सब में यू गर्डर यूजर है। आप कभी मुंबई आओगे तो यू कैन सी दैट। ये आई गर्डर जो आपको बताया मैं, एक्सेस 15-20 मीटर ऊपर गया तो इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा, ये देखेंगे यहाँ पे हमारा साइड पे यूज हुआ है आई गर्डर। इसका स्पैन लेंथ आप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉमिनल जो रहता है उससे ज़्यादा है। इसमें स्टैंड आता है, ये भी बहुत जने आप देखे होंगे साइड पे, मतलब अभी तो आपको पढ़ाया गया होगा प्री स्टेसिंग करके। प्री स्टेसिंग एक टॉपिक है, चैप्टर रहता है अपने कौन सी टेक्नोलॉजी में, तो आप वो भी देख सकते हो। ये स्टैंड को डिस्टेंस करके फिर उसको कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो ये सब अपने में सब एक सिविल इतना वास्ट है कि सब अपने में एक बड़े मतलब टॉपिक बहुत ही वास्ट है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सब अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक। ठीक है, अब ये आ गया कंपोजिट स्टील गर्डर है, ये अंडरस्ट्रक्ट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे देखिए, इसका स्पैन देखिए आप कितना लंबा है। ठीक है, नॉमिनल जो नॉर्मल है उससे ऑन एन एवरेज काफी लंबा है, तो उसके लिए हमने स्टील गर्डर कंपोजिट स्टील, जिसमें ऊपर कॉन्क्रीटिंग रहेगा और नीचे स्टील गर्डर यूज किया है। ठीक है, ये भी एक प्लेट गर्डर, इसको प्लेट गर्डर बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप स्पैन, तो बेसिकली ये सब यूज कहाँ हुआ है जहाँ पे ये स्पैन ज्यादा है, क्योंकि आप पीएससी वहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ बढ़ जाएगा आपका, तो हमको डेप्थ भी कम रखना है उसका, तो उसके लिए हमने स्टील गर्डर यूज किया, प्लेट गर्डर यूज किया। ठीक है, बस इसमें ये है कि आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको रस्टिंग देखना पड़ेगा, हर 2 साल में इसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये मुंबई में काफी ज्यादा बारिश सलाइन है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा रस्टिंग के, तो एज कम्पेयर टू अदर सिटी मुंबई में जो बहुत ही ज्यादा रस्टिंग का इशू है। अभी भी हमारा रोज का पेट्रोलिंग होता है कि रस्टिंग तो नहीं हो रहा कहीं पे, फिर उसको प्रॉपर पेंट करना, तो ये सब हमको इसमें ज्यादा मेंटेनेंस आता है। ठीक है, अब बियरिंग का पर्पस क्या है, जो आपको बताया था। बियरिंग क्या है, बियरिंग अलाउ टू कंट्रोल मूवमेंट करने के लिए रिड्यूस स्ट्रेस करता है, थर्मल एक्सपेंशन ये हो गया आपका। अगर यहाँ पे अगर बियरिंग है तो आप सपोज क्या हो सकता है इसमें, ये सब बियरिंग में रहेगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सेस्मिक फोर्स, विंड लोड, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, ब्रेकिंग का, ये सब मिनिमाइज करने के लिए ही बियरिंग का यूज होता है। ठीक है, अगर आप समझो बियरिंग में रहेगा तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक ब्रिज के लिए।
सो बियरिंग दिखने में बहुत ही छोटा आइटम है, बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिज। अगर वो फेलियर हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंटली पुणे पे भी हड़पसर साइड में एक ब्रिज को शायद बियरिंग का इशू था, तो ट्रैफिक वहाँ पे भी डाइवर्ट किया गया था। रिसेंटली विजिटेड डे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे। तो बियरिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज के लिए। तो यू कांट अवॉइड बियरिंग की। अच्छा तो ठीक है, बियरिंग में थोड़ा इशू चल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया उसके बाद बियरिंग रिप्लेसमेंट करना बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही मेहनत जॉब है, बहुत ही का तामझाम वाला काम है वो। तो वो आपको ये सब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम पे ही आपको ये सब बारीकी से देखना है। तो यही सब एक साइट इंजीनियर का गुड ये निशानी है कि आप कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो साइट पे। हर एक बारीकी का बारीकी आइटम आप देख रहे हो। दैट विल मेक यू अ गुड इंजीनियर इन फ्यूचर। अब मैं जैसे आपको बताया इलास्टोमेरिक, ये देखिए बियरिंग इलास्टोमेरिक है, उसका क्रॉस सेक्शन ये जनरली रबर कंबाइन रबर और स्टिफनिंग प्लेट का लेयर यहाँ पे। तो ये लोड ट्रांसफर करता है सुपर स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रक्चर और ऑब्जर्व मूवमेंट, जो मैं आपको पहले बता क्रीप चेंजेस एंड ड्राइंग सिंकेज। तो बियरिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि सब सही चल रहा है, बट जैसे यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ गया तो दैट इज अ बिग ट्रबल टू एवरीवन। यहाँ पे डिफॉर्मेशन थोड़ा भी, इसको हम लोग रूटीन भी चेक करते हैं हर 6 महीने में, इसका डायमेंशन सही है कि नहीं। तो बेसिकली मेंटेनेंस में यही सब हमको देखना है कि जो स्ट्रक्चर अभी है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है कि कुछ फेलियर आने के पहले हमको उसको रेक्टिफाई करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। अब ये आ गया पॉट पीटीएफई बियरिंग। ये जनरली ये स्टील बैटर ब्रिज में यूज होता है और ये वन टाइम, इसको बार बार मेंटेन नहीं कर सकते। वन टाइम लगा दिया इसको, फिर 10-15-20 साल जो है उसका टाइम वो चलेगा, सब्जेक्ट टू आप कैसे उसका अगर इसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो बहुत ही हार्ड टास्क है, मतलब इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसका एडवांटेज है कि वर्टिकल लोड भी दे सकता है, इसका तीनों साइड से जो भी लोड आता है ट्रांसफर मिनिमाइज करता है लोड को। तो ये एज कम्पेयर टू इलास्टोमेरिक बियरिंग ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक, ये इसके क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, टॉप स्टील पीटीएफई स्लाइड का ये इलास्टोमेरिक है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर उसको लगाते हैं, इसलिए उसको पॉट बोलते हैं, पॉट के अंदर रहता है वो। अब जब साइड पे कभी मौका मिलता है देखिएगा, गेट मोर क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट रहता है। फाइनली दिस इज द ये फिक्स होने के बाद, तो ये एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मेजर टास्क हो जाएगा, आपको इसको रिप्लेस करना होगा। ठीक, ये स्पेरिकल आ गया, ये भी एक अपने आप में एडवांस बियरिंग है। ये कॉन्वेक्स मेकिंग स्टील बैकिंग प्लेट का रहता है, वो फ्रिक्शन रहता है इसका। देयर आर परमिटिंग रोटेशन इन कर्व में भी स्लाइडिंग, जो भी जहाँ फोर्स ज़्यादा था उसको मिनिमाइज करके प्रॉपर वे में उसको लोड को ट्रांसफर करता है सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इनफ है। रॉन्ग सर्विस, बेसिकली इनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इलास्टोमेरिक बेरिंग। तो ये जैसे मैं बोला कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम आपने लगा दिया तो 15-20 साल तक कुछ नहीं होगा इसको। बट वो इलास्टोमेरिक बेरिंग में एज रबड़ का रहता, तो उसमें 5 साल बाद एज इफेक्ट की वजह से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन वो मेंटेनेंस करिए एज कम्पेयर टू दिस, वो ज़्यादा आसान है। अभी एक्सपांशन जॉइंट जो लगता है हमारे यू गर्डर पे, वो डिफरेंट टाइप के, ओमेगा स्टील एक्सपांशन, स्ट्रिप स्टील एक्सपांशन, मॉड्यूलर स्टील कंप्रेशन स्टील एक्सपांशन। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये एक्सपांशन जनरली ये पानी को भी ये का नीचे ना जाए उसके लिए भी यूज होता है। और ये एक्सपांशन का आपको पता ही है कि एक्सपांशन क्या रहता है, एक्सपांशन जॉइंट क्या रहता है। ये देखिए एक्सपांशन जॉइंट का बिल्डिंग में भी आप देखेंगे, बिल्डिंग में भी यूज होता है। पैरापेट पे आ गया, तो पैरापेट ये आपका पैरापेट है, यू गर्डर होगा, इसको पैरापेट बनाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ओएचई मास रहता है, इलेक्ट्रीफाइड रहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रीफाइड रहता है, तो ये ओएचई मास रहेगा और इसके ऊपर इवैक्यूएशन भी होता है पब्लिक का। तो ये टिपिकल पैरापेट डिटेल है यहाँ पे।
इसके वॉकवे पे केबल के यहाँ पे सब केबल जितने भी 33 केवी की केबल जो है यहाँ से पास होते हैं। और ये पैरापेट मैक्सिमम प्रीकास्ट रहता है, तो बोर्ड से आरसीसी कनेक्शन है। ये देखिए डिटेल में केबल हो जाता है पैरापेट में। ये लाइटनिंग केबल है, तो जितने भी केबल रिक्वायरमेंट सब यहीं से जाते हैं। ये रनिंग केबल, ये जितने केबल आप देखेंगे मेट्रो में, कभी आपको मौका मिलेगा साइट पे जाने को तो आप देख सकते हैं कि ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। सब सिग्नलिंग केबल, पावर सॉकेट केबल, बहुत ही टाइप के केबल सब जाते हैं तब जाके मेट्रो चलती है। ये ग्रेन स्पाउट की बात किया मैं आपको, डेक्सला में रहता है, पीवीसी का रहता है। तो ये मेन नीचे डाइवर्ट करने के लिए मेन ग्रेन स्पाउट होता है। बेसिकली आप अगर पानी को ये नीचे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा वायर डक्ट पे, तो दैट इज डेंजरस फॉर ट्रैफिक। ओके, तो इसीलिए ड्रेन पाइप लगा हुआ है और वो रूटीन हमको चेक करना पड़ता है। हमारे सेक्शन ये जो भी है सब साइट पे देखते हैं, टेक्नीशियन होते हैं वो देखते हैं कि तो वाटर प्रॉपर जा रहा है, क्योंकि मुंबई में आप सभी जानते हैं कि कितना हैवी रेनफॉल होता है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन मुंबई फॉर अ सिविल इंजीनियर एंड स्पेशली इन रेनी सीजन। वी विल कम टू सेफ्टी व्हाट। तो जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो का आपने एक कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लिया। अब कंस्ट्रक्शन तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है कि उसको ऑपरेट करना। अब जैसे मैंने कोई कंस्ट्रक्शन किया तो उसके बाद CMRS आता है, कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी। तो वो आके ट्रैक को चेक करता है कि ये पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं। तो उसके बाद अगर उसने उनको पाए कि हाँ ओके फिट फॉर पब्लिक, उसके बाद वो सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई यू कैन नाउ रन मेट्रो फॉर पब्लिक। तो पब्लिक के लिए उसके पहले तो हमको सेफ्टी भी देखना है कि सेफ्टी क्या है, सेफ रूट एसेस कैसे करेंगे, कंट्रोल एरिया क्या रहता है, PTW क्या रहता है, ये सब ऑपरेशन पार्ट में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी है कि नहीं आपके डेपो में, स्टेशन पे। तो ये आगे आप जैसे सेफ्टी में क्या क्या आता है, कॉस्ट। एक बार सेफ्टी आपने इग्नोर किया तो आपको बहुत फटका बैठ सकता है कॉस्ट का। क्वालिटी आपका नहीं मेंटेन किया तो सेफ्टी का दिक्कत आएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कोई बोलेगा अरे यार वो तो मेट्रो में ऐसा ही सेफ्टी नहीं है, तो रेपुटेशन का भी लीगल इशू हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं। तो सेफ्टी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई भी एज अ इंजीनियर आपको इग्नोर नहीं करना है। आइदर यू आर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड और यू आर इन ऑपरेशन, आपको सेफ्टी से ही चलना है। सेफ्टी के साथ आप खिलवाड़ नहीं करना। ये मैं फर्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट दूंगा इसको, क्योंकि बहुत ही मैं खुद अपने सामने बहुत सारे एक्सपीरियंस देख चुका हूँ कि रेलवे लाइन के सामने लेबर कट गए। तो ये सब सेफ्टी आपने थोड़ा इग्नोर किया तो बहुत ही बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। तो ऑलवेज आप फोकस कीजिए सेफ्टी पे, और काम भी होना चाहिए, दोनों आपको देखना है। अब ये आप देख रहे हैं पीपी किट बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारे डेपो में बिना पीपी किट के अलाउड ही नहीं, इतना स्टैंडर्ड बना कर रखा है। ये सब यूरोपियन स्टैंडर्ड यहाँ जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बिना सेफ्टी के आपको अंदर अलाउड ही नहीं है। आपको पीटी में शूज आएगा, जैकेट होना चाहिए आपके पास, गॉगल। आप डिपेंडिंग अपॉन वर्क, आप कैसा वर्क करो उसके हिसाब से, जैसे वेल्डिंग का कुछ काम है तो गॉगल्स यूज करना है। सेफ्टी है तो ज्यादा आवाज आ रहा है, सेफ्टी ग्लोव्स आता है, क्योंकि हाई टेंशन वायर है, वही चीज जो है बहुत ही ज्यादा 25 kV का रहता है। आपने अगर गलती से उसको टच भी किया तो आप तुरंत धुआं हो जाएगा, इतना हाई उसका करंट रहेगा आपको। तो सेफ्टी आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा, कहीं भी आप सेफ्टी में, सेफ्टी से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, मैं सजेशन दूंगा आप सभी को। फिर हमारा PTW क्या रहता है, जैसे मैं अभी ऑपरेशन में आपको परमिट टू वर्क रहता है। जैसे मुझे कुछ काम करना है, जैसे रोड में मुझे खड्डा करना है, तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है ट्रैफिक डाइवर्ट करो, आई विल वर्क हियर एंड बाकी ट्रैफिक हो। तो यहाँ वैसे नहीं, रेलवे सिस्टम में ऐसा नहीं कि आप जब मन में तब ट्रैफिक रोक दिए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन है ही नहीं। रोड में क्या आप डाइवर्ट किया, चलो तुम ये नहीं वो लेन से चले जाओ या वो गलती से चले जाओ। तो रेलवे में ऐसा है नहीं, रेलवे सिस्टम में एक बार आपने ट्रैफिक बंद किया तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पैसेंजर पे पड़ेगा, सेफ्टी पे पड़ेगा, और अल्टीमेटली रेपुटेशन पे पड़ता है कि यार क्या करते हैं। ठीक है, ये PTW मतलब परमिट टू वर्क करना है। जैसे एज ए इंजीनियर मुझे उस साइट पे काम करना है, तो मैं पहले स्टेशन कंट्रोलर के पास जाऊंगा, अप्रूवल दूंगा उससे, उसके बाद ऑपरेशन नंबर मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस, और वो हमको फॉलो करना है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप
ऑफिस कंपनी के एमडी हो या डायरेक्टर हो या कोई भी हो, यू हैव टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल। उसके बिना आप पीपी किट के बिना आपको तो साइट पे अलाउड ही नहीं करना, चाहे आप कोई भी हो। इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है मेट्रो ने। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 टाइप के पीटीडब्ल्यू है। परमिट टू वर्क टाइप 1 मतलब मुझे ट्रैक प्रोसेसिंग भी नहीं चाहिए और ट्रैक पावर ब्लॉक भी नहीं चाहिए। जैसे आपको साइट पे काम करना है लाइन पे, तो आपको पावर ब्लॉक लेना पड़ता है। ओएचई मास तो हाई टेंशन का रहता है, करंट लगने के चांसेस है, तो उसको वो लोग डिस्चार्ज करते हैं। फिर आप ट्रैक, तो अगर टाइप 1 में है तो आपको सिर्फ पेंटिंग करना है, कुछ स्टेशन पे काम है, तो आप टाइप 1 ले सकते हो। टाइप 2 मतलब ओनली ट्रैक प्रोसेसिंग, सिर्फ ट्रैक का फिटिंग देखना है, चेक करना है, फुट पेट्रोलिंग करना है, तो मैं टाइप लूंगा। पावर ब्लॉक मतलब जो पीएसटी बोलते हैं, पीएसटी एक डिपार्टमेंट है, पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन, तो वो लोग टाइप 3 लेते हैं। टाइप 4 मतलब आपने पूरा ही ब्लॉक ले लिया, ट्रैक प्रोसेसिंग विद पावर ब्लॉक, ठीक। तो ये 4 टाइप के पीटीडब्ल्यू है और ये काफी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ। अब ये सम फोटोज है जो कंस्ट्रक्शन में आपको कौन को सब बताते हैं। ये स्टेशन है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम, रिसेंट 2020 का है जब हम साइट विजिट किए थे। तो ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ये एलिवेटेड बन रहा है, यहाँ पे स्टेयरकेस बनता है, उसमें कौन को से प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे को अपने आप में एक बहुत ही, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको है, कैरियर ओरिएंटेड है। आप अगर सीरियसली सिंसियरली करोगे, स्टडी करो आप इसके। आप पहले तो कुछ था नहीं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, इसका बहुत एक्सपोजर मिल गया है, तो यू कैन चूज अ कैरियर इन मेट्रो, दैट इज वेरी गुड। स्टेबल जॉब है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। ये फोटो कौन को स्टेबल का, ये आपका पियर कैप दिख रहा है, ये पियर हो गया, ये आए गटर हो गया, इसके ऊपर कौन को स्टेबल है। ये देखिए सब पीपी किट में, यू कैन सी दैट में इंपॉर्टेंट फिगर हो। बिना पीपी किट के आपको साइट पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हैवी स्ट्रक्चर, ये सब आप देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रैक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आपने तो ये नीचे का देखे, अब हम लोग ट्रैक में क्या, ये इसको गेज बोलते हैं, आपको जो बताया था, ये स्टैंडर्ड गेज है। इनर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड, इसको चेकर बोलते हैं कि ये शार्प कॉर्नर में, तो इसको डिरेलमेंट ना हो, उसको गाइड करने के लिए चेकर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जो पैरापेट बताया, ये पैरापेट है, यहाँ से केबल पास होता है। ये जितने फिटिंग आप देख रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेड फिटिंग है, यहाँ इंडिया में एक भी फिटिंग बनता नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपना जो मेट्रो पर किलोमीटर कॉस्ट 350 करोड़ की है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एवरी कंपोनेंट इज इम्पोर्टेड। ट्रैक स्ट्रक्चर के सब बाहर से, लंदन और जर्मनी से पैंडोर फिटिंग, वॉशो फिटिंग बोलते हैं। तो ये आपको मैं आगे और दिखाऊंगा। तो बालास्टेड ट्रैक मतलब बालास्ट आपने देखा होगा, नॉर्मल आप जब ट्रेन ट्रैवल करते हो ट्रेन में, तो आप खड़ी वाला देखो, खड़ी दिखता है बालास्ट, उसको बालास्टेड बोलते हैं। मैं आगे 30 साल तक इसको कुछ होगा नहीं, आप चलते रहेगा, आप मेंटेन करते रहो, ये चलेगा 30 या 40 ईयर तक इसका लाइफ रहेगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप देखे होंगे कि कॉन्क्रीट, जैसे रोड में आप जाते हो टोल नाके के पास, वहाँ पे कॉन्क्रीट का रोड रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा वियर एंड टीयर होता है, ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा लगता है, तो उतने पैच को वो लोग कॉन्क्रीट का बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कॉन्क्रीट का रोड मत बनाया मतलब उसका लाइफ ज्यादा रहेगा और मेंटेनेंस कम रहेगा। तो उस रीजन बिहाइंड, यही रीजन है कि हमने यहाँ पे 12 से चूज किया। ये M35 से 40 ग्रेड का रहता है, इसको प्लिंथ बोलते हैं, इसको डिरेलमेंट गार्ड बोलते हैं, इसको प्लिंथ बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिटिंग लगा है, इसके ऊपर है, और इसके ऊपर ट्रेन चल रही है। ये यही सब लिखा है, वॉशो फिटिंग एंडोर सिस्टम, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे टॉप डाउन मेथड है, मतलब ऊपर का लेवल फिक्स करते हैं, उसके बाद नीचे कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने ऑटो लेवल से इसका लेवल फिक्स किया, देन आई विल डू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। तो उसका मेथड ये टॉप डाउन, मतलब टॉप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो बताया प्लेन का जो M35 45 डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन प्रोवाइडेड बाय द डिजाइनर, उसके बेसिस पर रहता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर का, आप अब तक हमने जो फोटोज देखे वो फ्रॉम रोड साइड देखा। अब ये ट्रैक का देख रहे हैं, ये यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, बिना ट्रैक परमिशन के आपको अलाउड नहीं होती। ये कन्फाइंड एरिया है, यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है, कोई भी रहे, प्रॉपर पीटीडब्ल्यू लेके ही आपको ट्रैक एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये सिग्नल हो गया, ये सब बालास्टिक फिटिंग है, ठीक है। ये ओएचई मास में मैं आपको बता रहा था।
इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन अभी तो आप रेलवे में अभी ट्रैवल किए हुए तो वहाँ भी दिखेंगे सर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है और ये केबल पास हो रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मेट्रो में, लेकिन एक बार आपको समझ में आएगा तो इट्स इजी फॉर ये आपका ये देखिए कितना मतलब बिल्डिंग के बीच में से जा रहा है, मतलब बहुत ही ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही हेडक है इसमें, बहुत चैलेंजिंग काम है ये, बहुत चैलेंजिंग होता है, आपको पब्लिक डीलिंग रहता है, फिर पॉलिटिशियन से डीलिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ है, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जब तक आप साइड पे आओगे ना तब आप समझ कितना ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है। बिल्डिंग साइड बिल्डिंग का फाउंडेशन आ जाएगा तो उसको बहुत कुछ है, मतलब उसके हिसाब से बहुत बार डिजाइन चेंज होता है, एक ड्राइंग बनता है उसमें 6-7 रिवीजन आते हैं तब जाके वो फाइनलाइज होता है। तो ये चैलेंजिंग वर्क है, बट या आप एक बार उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो यू विल एंजॉय दैट। और ये अपने आप में बहुत अपॉर्चुनिटी आगे भी आने वाला है, अभी फ्यूचर मेट्रो ही है, मैं बोलूँगा आपको। आप जितना जल्दी इसमें ये फील्ड में आ जाओगे आप उतना ज़्यादा आगे आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है और बड़े पोस्ट पे चले जाओगे आप फ्यूचर में। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करो, अपने कॉलेज टाइम उसके हिसाब से तैयारी करके पास आउट होके जितना जल्दी हो सके आप मेट्रो में कहीं भी सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको बेटर फ्यूचर मिलेगा उसमें। और इसमें फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, मैं बताऊँगा आगे आपको। ये देखिए ये डिफरेंट क्या है इसमें, ये बालास्टिक ट्रैक है जो आपने ये नॉर्मल जो ट्रैक देखते हैं आप लोग, आप कभी भी गए ट्रैवल किए हो तो इसमें ये सब ये स्लीपर बोलते हैं, ये रेल हो गया, ये फिटिंग्स हो गए, पैंडर फिटिंग बोलते हैं इसको, और ये आपका मेट्रो का फिटिंग है बालास्टिक, ठीक पूरा कॉन्क्रीट का है। तो इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इसलिए आप देखो कभी भी तो 6,000 करोड़ 12,000 करोड़ ऐसा बोला जाता है, मतलब बजट निकलता है मेट्रो में, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है। और ये जितना कॉस्ट है उतना चैलेंजिंग वर्क भी यहाँ पे। ये दिस इज डिफरेंट बिटवीन दिस इज बालास्टेज एंड दिस इज बालास्टेज। ये डेपो है हमारा, चारकोप डेपो मलाड वेस्ट में है ये। यहाँ पे देखिए पीपी किट में हमारा स्टाफ इंस्पेक्शन करते हैं, यहाँ सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है, काम होना, लेकिन आपको सेफ्टी अडर करना है, सेफ्टी में रहना है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना है। अब आते हैं ये जो फॉर्मेशन बनता है ये सब सॉइल सब ग्रेड, ये बालास्टिक ट्रैक है, अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपका सब सॉइल है जो हमारे डेपो में आपने जो अभी ये फोटो देखा, ये इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना होने के बाद ये आपको सिर्फ ये दिखेगा बालास्ट और ये ट्रैक, ये सेम रोड जैसा है, रोड का आपने देखा होगा कि वीक सॉइल जो है उसको निकाल के या ब्लैक कॉटन फाइल है उसको निकाल के मुरुम टाइप का फिल करते हैं, उसका फिर लेयर वाइज कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन सब करके उसका टेस्ट होता है, डिफरेंट होता है, इसका लैब में टेस्टिंग होता है, पास हुआ उसके बाद। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोसेस है इसका। तो ये आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, जैसे आप बिल्डिंग का देखते हो ना कि फाउंडेशन सब होने के बाद सिर्फ आपको रूम दिखता है, तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। ये फॉर्मेशन है पूरा, ब्लैंकेट सब ग्रेड सब सॉइल, तो ये होने के बाद आपको दिखता है। अब ये रेल के बारे में है, तो ये रेल का एक मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसको हेड, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज वेब एंड दिस इज फुट, ओके। तो ये आपका फील्ड गेज फेस हो गया, जैसे रेल का रनिंग होगा ये फील्ड फेस हो गया। तो ये एक टॉपिक पीवे का है, ये पीवे में आता है पूरा। तो मेट्रो में दो इसमें टीम डिवाइड है, एक सिविल और एक पीवे। पीवे विल बेसिकली लुक आफ्टर ऑल द पीवे मेंटेनेंस वर्क, ये सब पीवे के अंडर में आता है, दिस इज ऑल पीवे। और ये अगर आप वायरडक्ट के इधर आ गए तो ये सिविल देखता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 डिपार्टमेंट अपने उसके अंदर फर्दर डिवाइड है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना वास्ट इसमें है, मतलब आप सोचोगे मैं सिविल इंजन में ही सब देखूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, या तो आप पीवे चूज करोगे या तो सिविल करोगे, दोनों में आप दोनों देखना हो तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, और विच इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। तो ये आपका रेल का मैं आपको दिखा दिया बॉटम फ्लोर का, ये तो आपको आपके कॉलेज का लेक्चर में भी आपको दिखा, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर में रहेगा ये। अब रेल का फंक्शन क्या है, दैट विल प्रोवाइड कंटिन्यूअस स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो आप कभी भी बस में जाते हो या ऑटो में या अपना खुद का सेल्फ व्हीकल, तो आपको यार कितना खड्डा है, कितना जर्क आ रहा है, कितना मतलब इतना स्मूथ ड्राइव नहीं, तो उसका रीजन क्या है कि रोड खराब है। बट यहाँ पे क्या है, रेल में आपको कहीं फ्रैक्चर दिख रहा है तो उसकी वजह से आप कभी ट्रेन जाओगे तो उतना आपको हरासमेंट नहीं होगा कि आप कहीं से ट्रैवलिंग आप पुणे से मुंबई आए, आप बाय ट्रेन आओ और बाय
रोड आओ, आपको फर्क समझ में आए। आपका जो टायर्डनेस है आपको ट्रेन में कम रहेगा और बाय रोड आओ तो आपको ज्यादा रहेगा। क्यों बोले तो क्योंकि जो ट्रेन का अलाइनमेंट किया गया है वो इतना स्मूथ किया गया है कि पैसेंजर का कंफर्ट देख के उसको डिजाइन किया जाता है। मेन रेलवे का यही है मोटो कि पैसेंजर कंफर्ट के हिसाब से डिजाइनिंग होता है। कितना शार्प कर प्रोवाइड करना है, कितना ग्रेड रखना है, कितना रोलिंग ग्रेडियंट रखना है। वाइल रोड में उतना नहीं रहता है क्योंकि रोड का आप अपने वहाँ पे स्पीड का भी कोई ये नहीं है, आप स्पीड लिमिट रखिए तो भी अपने ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है कितने स्पीड में ले जाता है। लेकिन यहाँ पे सब फिक्स है, यहाँ पे उसके हिसाब से ही ट्रेन चलता है। सब टर्म्स एंड कंडीशन का रूल्स जो भी है उसके हिसाब से स्पीड इतना रखना है, इतना कर्व है तो उसका स्पीड इतना रहेगा। वो डिजाइन होकर वो पूरा सर्कुलेशन होता है कि भाई अगर रेडियस 500 मीटर है तो उसका स्पीड इतना आएगा, उसका कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो आप वही मेरा बोलना वही था कि एज कम्पेयर टू रोड रेलवे का जर्नी जो है वो काफ़ी स्मूथ है। तो ये उसका रीजन यही सब है कि इतना रेलवे का जो रेल स्मूथ रहता है, ये ट्रांसफर रोड करता है, व्हील को रेजिस्टेंस कम रहता है उसका, 1/5 ऑफ द रोड सरफेस। अब ये फिटिंग्स के बारे में आ जाए, जो मैं आपको फिट ये फिटिंग आपको दिख रहा है, इसको मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये जितने भी पार्ट है ना राइट फ्रॉम A to Z जो भी आपको दिख रहा है सब इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया में अभी इसका कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं। इसको आप वास्टो फिटिंग बोलते हैं, ये जर्मनी का है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड से यहाँ से ही हमारा इम्पोर्ट होके आता है और ये तो जापान से आया है। तो ये सब आप देख रहे हैं इसके फिटिंग्स है, सब मिला के 13 टाइप के फिटिंग रहते हैं। एंकर बोल्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट पैड हो गया, ये इलास्टिक पैड हो गया, ये रेयर पैड हो गया आपका, ये रबर प्लेट हो गया, ये क्रैम्प हो गया जो पकड़ के रखता है रेल को, ये टी बोल्ट हो गया, हेलिकल स्प्रिंग हो गया। तो ये इतने सारे पार्ट हैं, इसका अपने आप में फिर से वास्ट टॉपिक है, इसका अलग से आपको ये मतलब डाटा मिल जाएगा चाहिए रहेगा तो ये आपको बेसिकली इतना ही दिखेगा आपको। ठीक है, आप जब ट्रैक पे जाओगे तो आपको ये कॉन्क्रीट का दिख गया, प्लिंथ बीम बोलते हैं इसको, इसके ऊपर है ये स्केल 12 फिटिंग है। बस यू सी ओनली दिस मच ओके ऑन ट्रैक, बट बिहाइंड दैट इतना उसके ऊपर काम झाम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टर्नआउट पे। आपने टर्नआउट यार्ड में देखा होगा, पूरे यार्ड में अगर आप गए होंगे तो सेंटिंग होता है ना, सेंटिंग कर रहे हो ट्रेन ये प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो 1 नंबर की ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो वो कैसे होता है? ट्रेन में तो स्टीयरिंग है नहीं, जैसे हमारे व्हीकल में स्टीयरिंग होता है, हम अपने हिसाब से डाइवर्ट करके ये रोड से वो रोड में या यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। बट ट्रेन में क्या, एक लाइन पे जा रहे तो वही लाइन पे जाएगी क्योंकि उसके पास स्टीयरिंग नहीं है और वो फिक्स है, उसका जो फ्लेंज है वो फिक्स रहता है। तो अब मेरे को एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले जाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए टर्न आउट है। ठीक है, टर्न आउट मतलब डाइवर्ट करता है और उस 3 पार्ट में डिवाइड है बेसिकली, स्विच असेंबली, रीड असेंबली, क्रॉसिंग। तो ये 3 पार्ट में है और ये यहाँ से आप यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप सीधा जा सकते हो ट्रेन लेके या आप यहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरे लाइन पे जाते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्न आउट का फंक्शन क्या है, टू डाइवर्ट ट्रेन फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। अब इसका डिटेल एक डायग्राम है नोट उसके लिए भी। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, पॉइंट, ये इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको टंगलेर बोलते हैं, इसको हो गया ये हिलॉग, ये स्ट्रेचर बार हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मशीन लगा रहता है। आप कभी भी अभी जाओगे स्टेशन पे तो एक बार बारीकी से देखोगे तो कहीं आप देखोगे तो ना यहाँ ब्लैक कलर का बॉक्स लगता है, उसको बोलते हैं मशीन, पॉइंट मशीन बोलते हैं उसको, जिससे वो ऑपरेट होता है। वो उसका मेंटेनेंस सिग्नलिंग टीम करता है। ठीक है, तो ये स्टॉकवेयर हो गया, ये हम ये पीवे रिलेटेड है, चेकवेयर हो गया, गाइड करता है, जो भी व्हील गाइड करता है। ये क्रॉसिंग हो गया, यहाँ से यहाँ डाइवर्ट होगा, 2 इसमें चला जाएगा, फिर ये रनिंग रेल हो गया। ये सब आपको बेसिकली आपके सिलेबस में रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ सकते हो, उसमें रहेगा ये। तो मैं आपको बेसिकली एक समरी ब्रीफ कर रहा हूँ। इसका आपने आपने बहुत डिटेल है और देखा जाए तो हर एक पार्ट का डिटेल वाइज स्टडी है, इसका डायग्राम है, हर एक का ड्राइंग है। तो ये बेसिकली ये सब हमको देखना पड़ता है साइड। अभी मेंटेनेंस में मैं हूँ तो ये सब ही हमको देखना है कि ये सब प्रॉपर है कि नहीं, इसके जो डायमेंशन है, इसका जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग सही है कि नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो ये सब हमको देखना रहता है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ। यहाँ पे वियर तो नहीं हो रहा, रेल का वियरिंग तो नहीं हो रहा। तो ये सब जितने भी है ये सब हमको एज अ मेंटेनेंस हमको देखना है। एक बार ये कंस्ट्रक्शन होकर हमको हैंड ओवर हो गया, देन वी हैव टू मेंटेन इट।
और ये इसको फेल नहीं होना देना है, कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जो वहाँ पे डिप्यूटेड है स्टाफ है वो उसको लुकआउट करेगी, ये सब सही चल रहा है मेरे सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये तो आप पीवे का देख लीजिए। अब रिक्रूटमेंट कैसे होता है, तो आपको मैं जैसे बताया कि मेरा 15 मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में। तो बेसिकली हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग जीआर है, उसके हिसाब से वो लोग रिक्रूटमेंट निकालते हैं। तो बेसिकली जेई पोस्ट का निकलता है, टेक्नीशियन का निकलता है। तो ये सब रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, जिसे आप महा मेट्रो का आप देखते रहोगे, बीच बीच में वैकेंसी निकलता रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से ही लग जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि एज अ जब मैं पास आउट हुआ तो हमको सिर्फ 2 ही स्कोप था, या तो बिल्डिंग में जाना है या तो इंफ्रा में देखना है। और मैक्सिमम हम लोग को कोई गाइड करने वाला रहता नहीं है कि क्या करना है हमको। तो हम क्या करते, चलो यार मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, मैं भी करूँ, या मैं भी गेट का एग्जाम दे दूँ, हो गया तो ठीक है, या फिर पीजी करता हूँ, जॉब नहीं होता तो मैं पीजी करूँ। तो ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने को पहले ये सेट कीजिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि लाइफ आपका ऐसे ही रहने वाला नहीं है। आपको एक ना एक दिन कॉलेज पास आउट होना है, आपको अपने दम पे जो भी करना है वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि मैं पास आउट होने के बाद किस फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि जियो पे करना है मुझे, ट्रांसपोर्टेशन या बिल्डिंग्स में जाना है। उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज कीजिए और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि टाइम पास चल रहा है, ठीक है आज ये देख लेते हैं, ये करेंगे, वैसा आप मत कीजिए। और एक फील्ड चूज किया तो उसी में आप एक्सपर्ट हुए, देन यू गेट सम गुड बेनिफिट आफ्टर 10 ईयर और 12 ईयर। आपको रिग्रेट नहीं होगा, हाँ मैंने जो चूज किया वो सही। तो मेरा यही बोलना है कि आपको अगर मेट्रो में जाना तो मेट्रो बहुत ही अच्छा है फॉर सिविल इंजीनियर। क्योंकि आप देखिए, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि एज अ सिविल इंजीनियर आपको पोस्टिंग बाहर ही मिलेगा। अगर आप इंफ्रा में हो तो आपको आउटसोर्स खेड़ेगा बोलते जिसको हम लोग, आउटसोर्स में आपको जॉब करना पड़ेगा, जहाँ पे ना आपको रहने का सुविधा रहेगा ना खाने का दिक्कत। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। तो मेट्रो में आओगे तो बेसिकली मेट्रो में आपको सबसे प्लस पॉइंट है कि आप सिटी में रहोगे। सिटी में रहोगे तो आपको सब चीज पास में है, आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर सकते हो। जनरली आप देखोगे जितना भी कंस्ट्रक्शन रोड का है या रेलवे का है, वो सब आउटसोर्स में जंगल टाइप में जंगल में होता है, या बहुत ही आउट ऑफ रिच सिटी से बहुत दूर रहता है। तो सिविल इंजीनियर का लाइफ बहुत ही टफ है देखा जाए तो उस हिसाब से। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो कि मुझे अभी या तो मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करूँ। और मैं तो सबसे फर्स्ट यही करूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली गुड हो तो आप स्टडी करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी काम होता है गवर्नमेंट थ्रू होता है। आप देख लो कुछ भी हो, चाहे रोड हो, बिल्डिंग्स हो, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से लिंक है। तो अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम में आके काम करोगे तो दैट विल बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपको एक तो जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा, आपको जॉब का कोई ज़्यादा ये नहीं रहेगा, अननेसेसरी कुछ गलत काम करते नहीं हो। और सबसे मैंने आप स्टेबल लाइफ रहोगे, एक सोशल लाइफ रहोगे, फिर आपकी फ्यूचर में फैमिली के लिए भी सही रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब, इफ यू आर नॉट गेटिंग देन ट्राई फॉर, पहले भी बड़ा सोचो देन वन यू कैन गेट एनीथिंग। ये नहीं कि चलो ठीक है मैं साइड कहीं तो इंजीनियर बन जाऊँ, शुरू करता हूँ, तो ठीक है आप साइड पर रहो, शुरू में आप कॉन्ट्रैक्टरशिप में काम करो, बट वो लिमिटेड 1-2 साल, ये नहीं कि आप उसी में रह गए तो उसका ग्रोथ नहीं होगा आपको। अगर आपको ग्रोथ करना है तो यू हैव टू स्विच, हर 2-3 साल में आपको स्विच करना पड़ेगा। और मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही करूँगा कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब देखो, चाहे जेई का हो, एई का हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, या एनी अदर मीडिया थ्रू आप जाओ, लेकिन आप तैयारी करो। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मैं इसमें भी आपको बताया कि जेई टेक्नीशियन का एग्जाम थ्रू होता है। उसके बाद कोई स्पेशलाइज पोस्ट जैसे मेरा सिलेक्शन होता तो मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस था वही फील्ड में 10 साल का। तो डिपेंड अपॉन मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो टफ तो है, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू गेट सम गुड बेनिफिट ऑफ इट। तो मैं आपको सब मेजर मेट्रो का वेबसाइट के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें टच में रहोगे, देन ओनली यू कैन गेट अपडेट क्या मेट्रो में काम करना बहुत, मुझे तो अभी तक अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये डीएमआरसी का है, दिल्ली मेट्रो, ये तो बहुत फेमस है डीएमआरसी बेंगलोर मेट्रो। यहाँ मैंने 6 महीने ट्रेनिंग किया था, 6 मंथ ट्रेनिंग किया हमने यहाँ पे जब ज्वाइन किया था तो। फिर महा मेट्रो पुणे में है हेड ऑफिस इसका, ये भी आप वेबसाइट कंटिन्यू देखा करो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे इसके हिसाब से। फिर मुंबई मेट्रो, ये एमएमआरसी एक अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जो अंडर लाइन 3 का दिख रहा है, ये पूरा अंडरग्राउंड रहेगा।
ये चर्च गेट से निकलेगा वहां से, तो ये 40 किलोमीटर के अराउंड रहेगा। तो इसका अलग वेबसाइट, ठीक है, MMRC में। और ये यूपी का है, जहाँ पे लखनऊ में, कानपुर, आगरा में यहाँ चला, फिर कोची मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो, हैदराबाद, कोलकाता। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको गेन करते हो, कैसे आप स्टार्ट करते हो अपना लाइफ उसके हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेट्रो के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा फील्ड है ये। इधर कंस्ट्रक्शन में आया या मेंटेनेंस में आइए, दोनों में अच्छा है। आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा, अभी भी अच्छी है। और सबसे मेन आपको एवरीडे न्यू एक्सपोजर मिलेगा, न्यू चैलेंजिंग वर्क मिलेगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली बिकम अ गुड इंजीनियर इन फ्यूचर। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप अभी से सीरियस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ। और मेट्रो एक नया टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आया है, आगे 10 साल और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा इसमें। तो आई रिक्वेस्ट दैट आप इसमें तैयारी करो, उसके हिसाब से कोई तुम आइडिया फॉर यू। अब हमारे एमएमओसी में मैं जहाँ अभी करंटली काम कर रहा हूँ, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ही ओवरव्यू ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा जो एमएमआरडी आपको पता है, मुंबई मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्ट इसके चेयरमैन हमारे सीएम रहते हैं, ऑनरेबल सीएम रहते हैं। तो हमारा जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएमआरडी है, और हमारा जो सीएमडी है वो आईएएस ऑफिसर रहते हैं। अभी श्रीनिवासन सर हमारे एमडी सीएमडी है, और वो एमएमआरडी के कमिश्नर है। तो उनका वो जो 3-3 साल में उनका ट्रांसफर होता है, वो आईएएस थ्रू आते हैं वो लोग, यूपीएससी एग्जाम देंगे। उसके बाद आता है डायरेक्टर आते हैं, ये लोग भी आईआरएससी रहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं, ये आईआरएससी रहते हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर मेंटेनेंस। तो ये जितने पोस्ट आप देख रहे हैं, ये सब आया यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम दे के, और 20 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस के बाद ये लोग डायरेक्टर बनते, ठीक है। तो इतने इट्स नॉट इजी फॉर टू बिकम अ डायरेक्टर यहाँ पे। ऑलमोस्ट 55 प्लस ही जो भी डायरेक्टर है, 55 प्लस रहते हैं। उसके बाद आता है जीएम। तो जीएम में क्या होता है कि जैसे मैंने छोटे पोस्ट पे ज्वाइन किया, फिर प्रमोशन होते 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 रिटायरमेंट टाइम तक कोई स्टाफ जीएम बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज परफॉर्मेंस एंड उसका रिपोर्ट पीआर कैसा उसके हिसाब से। तो ये आपको देख रहा है, ये जीएम है, ये भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑपरेशन। उसके बाद इसके अंडर जो भी है एचआर फाइनेंस आता है, ऑपरेशन हमारा, हम इनके अंडर में आते हैं। जीएम मेंटेनेंस का पूरा मेंटेनेंस स्टाफ आता है। तो 2 लाइन जो 38 किलोमीटर का है अप्रोक्सीमेटली, तो पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये वर्किंग स्ट्रक्चर मेट्रो का ऐसा रहता है। और हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का, जैसे पुणे मेट्रो का कुछ और रहेगा स्ट्रक्चर, बट बेसिक जो ढांचा रहेगा जो ये सेम रहने वाला, ठीक है। कोई उसका सीएमडी रहेगा, उसके अंदर ये सब रहेगा। तो ये सब इससे बताया कि आप के हिसाब से प्लानिंग करो अपना फ्यूचर का, कैरियर बनाओ, मेट्रो में बहुत ही अच्छा है। फिर ये मैंने प्रोजेक्ट जो आरवीएनएल में था, मैं सोलापुर भेगवन सेक्शन में था, तो उसके सब फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा डबलिंग का था। ये न्यू लाइन है, ये एग्जिस्टिंग लाइन, ठीक है। ये पियर है, ये बैक वाटर उजनी डैम आपको पता होगा, उजनी डैम का बैक वाटर ये ब्रिज बना है। तो इसमें मैं आई वॉज देयर फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज में था, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो इतना चैलेंजिंग वर्क था ये कि इसके बारे में अलग से मैं आपको बता, मतलब उसके लिए अलग टाइम भी चाहिए। बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है ये सब। ये अंडर सा गर्डर यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो सराउंडिंग में क्या है। आपको यहीं पे कैंप बना के रहते थे हमारे स्टाफ लोग, कंटिन्यू राउंड द क्लॉक काम चलता था 24/7। तो ये सब बनाने के लिए दिखने में बहुत इजी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे रुक जा रहा है, बट इसको जो बनाना है, जैकेटिंग किए थे इसको, बहुत ही टिपिकल और बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है, और बहुत स्कोप है इसमें, और बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप ऐसे काम कीजिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो अल्टीमेटली बिकम अ गुड इंजीनियर इन फ्यूचर। फिर ये हमारा सीएमआरएस इंस्पेक्शन में, सीएमआर जो मैं आपको बताया, सीआरएस रहता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो आके ट्रैक इंस्पेक्शन किए थे। फिर ये डबलिंग प्रोजेक्ट है भीगवन स्टेशन, एरिया रिव्यू है। तो ये सब मेरा पुराने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में, तो मैं फोटो दिखा रहा, बट इसमें बहुत सारे मेहनत लगते हैं काम के लिए। तो बेसिकली यही है कि सिविल इंजीनियर को आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको जाना किधर है। क्योंकि आप जो एज में हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूँ, कोई बोल दिया नहीं यार ये करो वैसा करो। तो ये सब मत करो, आप खुद बैठ के डिसाइड करके मुझे करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंफ्रा में जाना है, कि मुझे बिल्डिंग्स में, रियल एस्टेट में जाना है, कि मुझे टीचिंग में अच्छा लगता है। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है वो
सिंसियरली और वाइजली चूज करो। ये नहीं कि 2 साल बाद आपको रिग्रेट हो गया यार मैं ये क्यों आया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। सो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करो। और बहुत ही वास्ट, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक कि फॉरेन में मेट्रो का बहुत ज़्यादा है। मेरे कलीग्स है जो ऑलरेडी फॉरेन में, सऊदी में अभी जॉब करते हैं, जिनको 5 लाख पर मंथ पैकेज है उनको। तो डिपेंड करता है आप कितना अपने आप को डेवलप करते हो, स्किल डेवलप करते हो, उसके हिसाब से मार्केट में आपको डिमांड रहेगा। तो वही आपके लिए स्काई द लिमिट। अगर आप जितना पढ़ोगे, जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना गेन करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये मेरा बेसिक यही था कि मैं आपको ये दिखा दूं कि आप कितना जितना ये सब किए हैं, बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर से और बहुत ही हार्ड वर्क के बाद ये सब हुआ है। तो आप डिसाइड करने लगे कि आपको करना क्या है। बट जो भी है आप बी सिंसियर, और अभी से आप डेडिकेटेड हो जाओ कि जो भी फील्ड चूज करो सिंसियरली करो, यही मैं बोलूँगा। थैंक यू। Thank you, sir, for your very informative session and sharing this vast experience with us. Now, I would like to tell the participants to post their questions in the chat box. Sir, I have a question. Can you explain this? Explain about the seismic stopper. सेस्मिक स्टॉपर बेसिकली जैसे 2 गटर है ना, यू गटर हमने ज्वाइन किया। तो अगर हम सेस्मिक स्टॉपर नहीं लगाएंगे and if there is any earthquake type movement हुआ तो वो डायरेक्ट ही डिसबैलेंस होकर नीचे गिर सकता है। तो उसको स्टैगर टाइप में लगाते हैं कि वो स्टैगर है, मतलब रिजिड रहे, वहां पर गिरे ना, उसके लिए वो सेस्मिक स्टॉपर मेन यूज वही है। Thank you, sir. Now, I would like to call up HOD NR Patil sir to share his thoughts with us. Good afternoon, everyone, and all present here. Honorable Chief Guest, Engineer Shailesh Tiwari Sir, Section Engineer, Mumbai Metro Operation Corporation, Engineer Vikas Patil Sir, Chairman IGS Pune Chapter, Professor Suman Jain, Joint Secretary IGS Pune Chapter, Mrs. Iyer Madam, Joint Secretary IGS Pune, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you, all dignitaries, on the behalf of the Civil Department of TSSM, Bhirabai Sawant College of Engineering and Research, Pune. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I express my gratitude to our speaker, Shailesh Tiwari, Senior Section Engineer, to take out time from his busy schedule and to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your great knowledge of Metro. A special thanks to our campus director, Tushira Sawant sir, and Principal Dr. G.A. Hinge sir for supporting to make this webinar successful. I extend my gratitude to Professor Bhosle Madam, Dean Academics, BSc UAR Pune, and Professor S.D. Patil sir for helping in this seminar. I also thanks to all organizing committee members and IGS chapter Pune for the permitting us for this seminar. Thanks to IGS chapter Pune. Sir, there is a question in a chat box from Shakib Khan. Sir, how do we design load bearing plate on a pier? How to बेसिकली रोड बेयरिंग में जो कैप है वो पियर कैप ना, रास्ते वो पियर कैप। Sir, there is another question from Atish.
Mostly. टाकली सांग फीडबॅक All the participants, the feedback link is provided in the chat box. You can now fill the feedback form. ऑटोमॅटिक सेव्ह होतं. Thank you all participants. Now you can fill up the feedback form, and I thank you all of you for participating in this webinar. All the best for your future. Thank you very much.